Good morning, student. Today we will see some NCERT questions which are given on the chapter magnetic effect of current, student. Okay. First, let me take one numericals. One numerical is first I am taking, student. In this, it is given an electric oven, power rating 2 kilowatt. This is the power rating, student, and the current rating is also given, student. Current rating is 5 ampere, student, and this is the power rating at this much volt. And this is operated at 220 volts. So what will be the result? I have to discuss. Now students, see meaning of this. Electric oven power rating this at this volt. This is very important, student. From this I will get the resistance of electric oven. Resistance of oven. And the formula is, student, you have to remember, P is equal to V square by R. So R will be equal to V square by P. So it will be 220 upon 2 kilowatt, student. Means it is 2 into 10 into 3. This resistance is a fixed quantity, student. It is decided by the power rating. Okay, student. Now it is operated at this volt. The current drawn now the formula is V by R. This V is operating voltage, student, at which it is operated. So in the question it is given 220 volt. And R is, I have calculated this, student. So this way, student, the calculation becomes easy. And this 1 0 will cancel here, student. So here I will get 200 and here I will get 22, student. Now again it will cancel. If I solve this, I will get something like this, student. Now see, student, this is drawing current this much, but its current rating is this much. Hence, the appliances will get damaged. Because it is drawing this much current, and it has rating of 5 amperes. Means maximum current which it can tolerate is 5 amperes. But in this case, it is drawing this much current. So that it will damage the apparatus. It will damage the appliance if the fuse is not there. This is one of the question given in the NCERT, student. Now before this, there is one more question which has been asked, that safety measures taken, student. One, you have to remember a fuse wire is connected, and second, you have to remember earth wire. Earth wire provides the least resistive path to the current, so that the current which comes in the body, it will go to the ground. And fuse limits the current. It limits the current. If the current exceeds, it melts. Already we have studied, student. So these are the two safety devices, safety measures which are used. Now another question in NCERT which is given here, student, is method to precaution to avoid overloading. NCERT question, precautions to avoid overloading. So first precaution is, student, too many appliances
should not be connected in a single socket. And second student, the faulty devices should not be connected. Okay student, this is the answers. You might be knowing it also. Now students, some questions on NCERT which are based on this force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Student, I will give you one formula to remember it how. One formula is this student, I B L sine theta. Though this formula is directly not there in our course, but to understand the NCERT, to answer the NCERT question, you will require this formula student. Now what this formula is about, see student. This is current, you know it. This is magnetic field. This is length of the conductor. And this theta student, it is the angle between, I can say, current and magnetic field. So generally in our case, this theta is taken to be 90 degree. Means it is kept perpendicular. So the formula becomes this student. Because sine 90 is 1. Means current and magnetic field, they are kept perpendicular in most of the cases of 10th class. So this is the formula you have to remember student. Now student, one question which is given in the NCERT is based on this formula. And this is a student about the one activity. Here you book, you have NCERT. That activity I am showing you student. From where the questions are asked based on this formula. Student, that activity is given here. It is activity student 13.7. This activity student, where we have a current carrying conductor and it is kept in a magnetic field. The activity is 13.7 student. And the question is given on page 232 student. It is given question number 2. Question number 2 student. The activity was about this. One horseshoe magnet has been kept like this student. Say it is north and south, okay. So there is a magnetic field student. Now here there is a conductor. So this conductor, there is an arrangement of passing current. This is hanging in a stand student. So this is a current carrying conductor. Okay student, this is the activity. The question is, now see the current carrying conductor is kept perpendicular to magnetic field. You see this is current and this is magnetic field.
They are perpendicular, so this formula is valid, student. F is equal to I B L. L is the length of the conductor. This is conductor, student. The question is, what do you think displacement of this rod is displaced from its position? The displacement of the rod AB will be affected if current in the rod is increased. If I increases, student, I increases, force will increase. Increase, I am drawing upper arrow. Force increases. Hence, student, displacement increases. भाई फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये रॉड डिस्प्लेस ज्यादा होगा. सेकंड क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट. ये हॉर्सशू मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मतलब बी हाई है, बी इज हायर, तो बी हायर होने से भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स विल इंक्रीज. एंड द थर्ड पार्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज. इस लेंथ को बढ़ाया गया स्टूडेंट, लेंथ बढ़ाने से भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बिकॉज फोर्स विल इंक्रीज. तो सारे केसेस में आइदर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो, फील्ड को बढ़ा रहे हो और करंट को इंक्रीज कर रहे हो, सारे केसेस में फोर्स विल इंक्रीज. ये इसका आंसर है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन यहां उसके नीचे दिया है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. अब स्टूडेंट इस टाइप क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट. देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. इसमें स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने आज मैं आपको मेथड इजी कर दे रहा हूं. क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिया है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. इसका मीनिंग समझना, वो पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ करंट. अब मान सकते हैं वेस्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका ये मीनिंग है. फिर लिखा है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन है स्टूडेंट. ये दिया हुआ है, ये दोनों दे आर गिवन. हमको निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें स्टूडेंट दो, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट. हाँ, इसमें क्योंकि नॉर्थ साउथ दिया तो अब सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ये है स्टूडेंट करंट का डायरेक्शन वेस्ट, ये देखो. और स्टूडेंट फोर्स, ये है एफ का डायरेक्शन. मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड से देखें, डायरेक्शन एक है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. तो हमारा यहां पे आना चाहिए सेंट्रल फिंगर और यहां आना चाहिए थंब. तो स्टूडेंट ये जैसे लेफ्ट हैंड है. अब स्टूडेंट मेरे इस फिंगर को तुम ध्यान से देखो, थंब ऊपर तरफ है इस फिगर के अनुसार, थंब इज अपवर्ड. डिफ्लेक्टेड ये फोर्स है. सेंट्रल फिंगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा वेस्ट. तो आप देखो स्टूडेंट ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मतलब इसका आंसर है वर्टिकली अपवर्ड. इस बोर्ड के अनुसार वर्टिकली अपवर्ड. तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, इस वाले रूल से थोड़ा फिंगर्स में कभी कभी बच्चों को डिफिकल्टी आती है. तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड को आप समझिए. कंपलसरी नहीं है सबको सीखना, अगर आपको ये वाला समझ में आएगा इससे कर लीजिए.
मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ईस्ट वेस्ट, एंड दैट मेथड इज स्टूडेंट, आपको क्या करना है, दिस फर्स्ट आई एम लविंग इट, आपको इस फॉर्मूला को, पहले फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं आसान, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। अब आप क्या करो स्टूडेंट, अपने राइट हैंड, ध्यान रखना स्टूडेंट, राइट हैंड एक्चुअली जो बुक में दिया राइट हैंड फ्लेमिंग का, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो दूसरा चीज है, वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं आपको ये वाला मेथड एक दूसरे राइट हैंड रूल से बता रहा हूं। आपको थंब को ऐसे रखना है, देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, आपका हाथ ऐसे रख, राइट हैंड, ध्यान रखना, ये फिंगर्स ये ऐसे परपेंडिकुलर होने चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये वाला फिंगर है, ये थंब है, ये फिंगर है, हाथ को आप ऐसे रखिए बस। फिर क्या करिए आप, ये फिंगर ये वाला, ये होना चाहिए टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स, फिर ध्यान दो स्टूडेंट, टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं, करंट मेरे इस तरफ जा रही है, तो मैं हाथ को, इस फिंगर को ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसा ऐसा, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन मैं रखूंगा किस में, अब दूसरा चीज, हाथ को ऐसे रखना है, ये तो करंट हो गया, ये वाला फिंगर कर्ल होना चाहिए टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हाथ को रखना है। मतलब अगर मेरा करंट ऊपर जा रहा है स्टूडेंट और मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ है यहां से, तो मैं हाथ को कर्ल कर पा रहा हूं, तब स्टूडेंट उस पे फोर्स का डायरेक्शन ये है। दिस इज द रूल स्टूडेंट। अब मान लो मैं हाथ ऐसे रखा हूं, ये है करंट, ये फोर्स है, तो इस तरफ अपन आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग, इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब स्टूडेंट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा समझ सकते हो। मतलब आपको हाथ को ऐसे रखना है करंट को कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये हाथ मुड़ जाना चाहिए, तब ये फिंगर क्या शो करेगा, फोर्स स्टूडेंट, इट विल शो द फोर्स। ये है बेसिक। अब इस क्वेश्चन को आप इससे कर सकते हो स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, ये है मेरा करंट, इस तरफ आ रहा है करंट, और ये फोर्स की तरफ होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर, आंसर आया था, देखो बाहर तरफ उंगली मुड़ रही है, तो आशीर्वाद जिस तरफ जा रहा है वो है बाहर, तो वर्टिकली अपवर्ड, आंसर आ गया। इस मेथड से स्टूडेंट जिनको इनसे दिक्कत आती है, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। राइट हैंड, इसको बोलते हैं पाम रूल। ये बुक में नहीं है मेथड, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो कहां पे, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, और इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपने आप आ जाएगा। मतलब आपको हाथ को टर्न करना है, ऐसे रखना है, जब भी रखेंगे ये फोर्स होगा, ये करंट होना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए, हाथ मोड़ना चाहिए। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरे अंदर तरफ है, मैं जहां खड़ा हूं, और मैं हाथ को, अब करंट ऊपर है, तो मैं हाथ को, ये हाथ गलत है, मैं हाथ को अंदर तरफ मोड़ नहीं पा रहा हूं, तो मुझे हाथ को ऐसा करना पड़ेगा। देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है, तो मेरे को हाथ को देखो अंदर मोड़ रहा हूं। अब ये थंब कहां जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो राइट में फोर्स लगेगा। तो फिर से स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूं, हाथ को ऐसा रखिए, ये फोर्स और ये करंट, ये करंट है स्टूडेंट, लेकिन कैसे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये मुड़ जाना चाहिए, तब ये फोर्स है। दिस यू हैव टू नो। ऐसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट एनसीईआरटी में और एक और दिया, इलेक्ट्रॉन का दिया है। इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड टुवर्ड द फ्रंट। तो इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा है आगे, पीछे से आगे, मतलब करंट उसके ऑपोजिट में आ रहा है, करंट इज कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और डिफ्लेक्शन राइट में हो रहा है, तो आप क्या करो, ऐसा रखो, डिफ्लेक्शन राइट में हो रहा है, तो हाथ को ऐसे रखो, जैसे मेरा अभी राइट, मेरा ये लेफ्ट है, तो मेरे राइट के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो मेरे लिए करंट ये होना चाहिए, और डिफ्लेक्शन राइट ही हो, तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर आ रहा। देखो अगर करंट ऐसे आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैंने करंट को ऐसा लिया, ऊपर आ रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे आ जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा स्टूडेंट।
कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में ऑपोजिट करंट ले लो और करंट की तरफ इस फिंगर को रखो और उसमें फोर्स का डायरेक्शन दिया है डिफ्लेक्शन, इस उंगली को उस तरफ करना है, तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डोंट वरी अबाउट इट, नहीं तो आप इसी रूल से करते रहो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट। इससे आपको स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और अभी भी इसी वाला नहीं आया तो आप बाद में फोन करके आप पूछ सकते हैं। तो ये और स्टूडेंट ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम, व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम, कंडीशन है करंट carrying conductor should be kept perpendicular to magnetic field, तब स्टूडेंट फोर्स मैक्सिमम आएगा, देन द फोर्स इज मैक्सिमम। ये स्टूडेंट फोर्स के बारे में है। अब जो दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का एनसीईआरटी वो है अबाउट इंड्यूस्ड करंट स्टूडेंट। मेथड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। पहला मेथड स्टूडेंट, कॉइल, मैग्नेट, रिलेटिव मोशन, बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। पहला मेथड करंट आ जाएगा स्टूडेंट, रिलेटिव मोशन करेंगे, कॉइल को मूव कर सकते हैं, मैग्नेट को मूव कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन, दोनों एक साथ मूव नहीं कर सकते स्टूडेंट, मतलब रिलेटिव मोशन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, बेसिक है द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट चेंज। और दूसरा मेथड है स्टूडेंट current carrying coil placed near a coil without current। मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल है और आप दूसरा यहां पे कॉइल रखो, इसमें करंट नहीं है, इसमें जब ये फील्ड चेंज होगा या करंट चेंज होगा इसमें इंड्यूस करंट आएगा स्टूडेंट। ये दूसरा मेथड है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने का स्टूडेंट। स्टूडेंट एनसीईआरटी में एक वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि जैसे ये कॉइल है और ये मैग्नेट है स्टूडेंट, आया मैग्नेट इज सडनली पुश्ड, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट विल बी देयर। इसमें आ जाएगा। फिर दूसरा है मैग्नेट इज सडनली रिमूव्ड या टेकन अवे,
magnet is suddenly removed. Again, student, induced current will flow. But in opposite direction. और थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी. नो करंट. बिकॉज स्टूडेंट रिमेंबर इट, इंड्यूस करंट की कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए उस कॉइल में. ये बेसिक है, किसी भी मेथड से हम चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड मस्ट चेंज, तभी उसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा स्टूडेंट. ये उसका बेसिक है. अगर स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा कॉइल है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं और यहां मैग्नेट है, इसको रोटेट करें स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा स्टूडेंट. और इसमें करंट आ जाएगा. यही होता है स्टूडेंट जनरेटर्स, इसी को कहते हैं जनरेटर. हमने जनरेटर का मैंने अलग से एक वीडियो बना के भेजा भी है स्टूडेंट. दिस इज जनरेटर स्टूडेंट. और दूसरा स्टूडेंट, अगर हम इसमें करंट पास करें, इसमें हम करंट पास करते हैं, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है पहले से ही, तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगा स्टूडेंट इसका. दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग. इसको कहते हैं मोटर. दिस इज स्टूडेंट मोटर कहते हैं. तो हमारे पास इसके एप्लीकेशन में दो डिवाइस हैं स्टूडेंट. एक है मोटर, this works on the principle force act on a current carrying conductor kept in a magnetic field. अब क्योंकि मोटर में फोर्स एक से ज्यादा लगते हैं स्टूडेंट और वो रोटेट कराते हैं, इसीलिए उसी फोर्स का नाम ये हाई क्लास में इसको टॉर्क कहते हैं. मतलब टॉर्क इस टाइप का फोर्स है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बार फोर्स हम एक यहां लगा रहे हैं, एक यहां लगा रहे हैं, तो ये इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. दो फोर्स आ गए स्टूडेंट, तो ये रोटेट करना शुरू होगा. इसी को कहते हैं टॉर्क. मोटर इसी पे वर्क करता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. दूसरा होता है स्टूडेंट जनरेटर. जनरेटर का प्रिंसिपल है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मीन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं इसमें. तो इसमें हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, करंट, इंड्यूस करंट हमें मिलता है. Okay student, so student today I have tried to solve the most difficult part of the NCERT questions which are there in this chapter. Still if there is any doubt you can ask it or I will continue in other class. Thank you student for today's class.